Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another grammar day and today we are going to do pronouns worksheet. अगर आपको बहुत क्लियरली याद है कल हमने ऑलरेडी प्रोनाउंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या है हमने सिंगुलर फेमिनिन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हमने सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करी है. एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको आज बोला था कि मैं वर्कशीट कराऊंगी. सो हियर बिगिंस आवर वर्कशीट. सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हमें प्लेनली प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना है, नथिंग मोर. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. Paul has new shoes. He loves them a lot. So, of course, absolutely correct. Mary went to school early. She is a great student. She. ये Paul हो गया हमारा singular masculine. She is singular feminine. Peter and Sally work at the bakery. They love working there. So they. ये हो गया हमारा plural. John's family love takeaway. They eat it every Friday. So they again plural. Takeaways are जब आप dine in नहीं करते, you take home the order. Simon's new house is large. He has 7 bedrooms. 7 bedrooms किसके पास है? Simon के न्यू घर में है. The new teacher is so friendly. He is kind to everyone. So he, of course. Paul plays soccer on Saturdays. He is the best player. So again he. मेरे जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं आई एम जस्ट इंश्योरिंग कि मैं अपने नेमिंग वर्ड्स को रेप्लिकेट कर दूं. आई एम जस्ट एक्सचेंजिंग माई नेमिंग वर्ड्स विद अ प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन. डोंट फॉरगेट दिस, प्रोनाउन इज ऑलवेज इन द प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है, मूविंग ऑन. सेकेंड एक्सरसाइज. अब हमें नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे भी अब ये ही है. दिस इज इट. It, she, he, it, she. Good. अब ज़रूरी नहीं है सारे आंसर्स इतने ही इजी हो जितने ये कराए हैं मैंने. ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाएंगे. अगेन 7 to 10 आर गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चंस. आप इनको प्रैक्टिस करेंगे एंड यू आर गोइंग टू शेयर द आंसर्स विद मी इन द कॉमेंट सेक्शन. I'll check the answers and I'll let you know. फिर मुझे भी पता लग जाएगा आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं आया. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. Murat is a good boy. Dash always listens to teacher. So he always listens to his teacher. Amit and Sumita twin brothers. Dash take the same back to school. So they, क्योंकि ये plural है. Millie and I are very good friends. Dash have known each other since childhood. Again, we have known each other since childhood. The mangoes are very sour. Where did you buy? Obviously, them, plural hai. Next, fifth one. I love watching Tom and Jerry. Dash reminds me of my childhood days. So, it reminds me. I bought this book for my sister. Dash often read it together. So, we often read it together. I and my sister, both of us, we read it together. ठीक है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो ये. ओके, नेक्स्ट हमने अब करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसेस को फिल करना है. ठीक है, फर्स्ट वन. डैश फील लाइक टेकिंग अ शॉर्ट ट्रिप टू मालदीव्स. सो आई और मी. अब ये पर्सन भी है साथ में आपकी अलॉन्ग विद फाइंडिंग आउट द पर्सन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी नाउन है जो स्पेशली पोजेसिव में है. ये वो सारे हैं. सो डैश फील लाइक टेकिंग अ शॉर्ट ट्रिप्स टू मालदीव्स. सो आई फील लाइक टेकिंग अ शॉर्ट ट्रिप्स टू मालदीव्स. डैश थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट. सो आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट. नेक्स्ट इज Wuthering Heights is Dash favorite book. Is her favorite book. By the way, it's a very beautiful book if you haven't read it. Those papers are Dash, are mine. The box was lying around. Is Dash yours? Is it yours? Remember कल मैंने आपको its और its में डिफरेंस बताया था. चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या डिफरेंस है. Do you remember it? The dog almost choked himself or itself. Obviously dog है, neutral gender है, that is why itself. Natasha was all by yourself, herself.
Natasha feminine है, herself, right? Okay. Again, question number 8, 9, 10 are going to be your homework. बहुत कम number of questions मैं homework में दे रही हूँ. I'm not giving you many questions for homework, but that implies कि आपको at least ये तो करने ही करने हैं. ठीक है, ये important है. अगर आप ये वाले questions भी नहीं करोगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, चलें, अब हम क्या करेंगे, थोड़े से प्रोनाउंस में आपसे थोड़े सेंटेंसेस पूछूंगी, आप मुझे बताना विच टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज. ठीक है, अगर आपको हल्का सा रिवाइज करना है तो यू कैन अगेन हैव अ लुक एट दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में. आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने कल नहीं किया है तो. पर्सनल प्रोनाउन है हमारे पास, पोजेसिव प्रोनाउन है हमारे पास, इंडेफिनिट प्रोनाउन है हमारे पास, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंटेंसिव को मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कल भी. देन हमारे पास है इंडेफिनिट. देन आई हैव रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव एंड देन डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. डैश डिड यू सी एट द मॉल. ये इंटेरोगेटिव से रिलेटेड है. ठीक है, डैश डिड यू सी एट द मॉल. सो करेक्ट, हु डिड यू सी एट द मॉल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, डैश डिड यू गिव द गिफ्ट टू. आपने किसको गिफ्ट दिया. whom. जब आप किसी पर्सन के बारे में बता रहे हो कि हु डिड यू सी एट द मॉल, किसको देखा आपने. हु डिड यू गिव द गिफ्ट टू, किस. अब देखो मतलब दोनों के किसको ही है. हु, हुम, लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन इज ओनली किसको, बट इट इज जस्ट दैट यूसेज. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. जैसे अगर यहाँ पे होता द बुक आई बोरोड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, अब मेरे को ये बताना है विच या हु में से क्या आएगा, तो विच आई बोरोड. ये पर्टिकुलर थिंग्स दीज और दिस में डिफरेंस कहाँ पे आएगा. जैसे अगर मैं बोलती हूँ दैट डैश आर द एप्पल्स आई पिक्ड, दिस एप्पल और दीज एप्पल्स, ये आपको सिंगुलर प्लूरल मैंने कराया है तो आप उससे बहुत आराम से ये आइडेंटिफाई कर लोगे. थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है बस इसमें, ऐसा नहीं है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछती हूँ आई कट डैश वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स. सो आई कट माई सेल्फ और आई कट आर सेल्व्स. अब इफ आई एम सेइंग आई, तो आई तो सिंगुलर ही है तो आई कट माई सेल्फ ही आएगा. आई कट आर सेल्व्स तो नहीं आएगा, ये तो वेरी ऑब्वियस है. सो दैट इज वाई बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज आएंगे, कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइजेज नहीं है यहाँ पे. एंड ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नाउन्स का. मोस्टली यहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं. मोस्टली मिस्टेक्स आर मेड हियर इटसेल्फ वेयर इन वी जस्ट फॉरगेट. चॉइस करते वक्त हम भूल जाते हैं. Okay, I hope that you have understood the questions. I have tried to keep it very simple. I have tried कि आपको समझ आए और relatable लगे. ठीक है, अब आपने क्या करना है, of course, like, share and subscribe तो करना ही करना है, because if you are following the series then I'm sure you're liking it as well. And make sure that you stay tuned because tomorrow is going to be a vocabulary Tuesday and soon enough in the grammar series we're going to pick up the other part of speech. एंड फिर हम उसी पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करेंगे. बट स्टे टिल द एंड ऑफ द सीरीज बिकॉज सून इनफ व्हेन वील फिनिश अप द पार्ट्स ऑफ स्पीच आई एम गोना हैव एन इंटीग्रेटेड ग्रामर वर्कशीट. वो भी मैं कराऊंगी ग्रामर वर्कशीट में जब हम 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेंगे. ठीक है, अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द गिवन होमवर्क. बहुत थोड़ा सा होमवर्क है, नथिंग मच. 3 4 इन टोटल 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है बस. Nothing more than that. Okay, chalo. On this, I'm gonna sign off. I'll see you tomorrow. Bye bye.